अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेज़ फॉर योर एग्ज़ाम, जो कि हैं लेक्चर नंबर 13, 14 एंड 15 में से। और बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ dash is a systematic procedure for collecting, storing, maintaining, retrieving and validating data needed by an organization about its human resources. Answer is human resource information system. Description is given here. You can see the description of each MCQs. Next question is human resource information system can be used in किस में हो सकता है, succession planning में. Next question is which of the following is not an advantage of human resource information system. सारे advantages हैं, जो नहीं है वो है induction of new hires. ठीक है, ये इसका part नहीं है. What is the relationship between HRIS and MIS? Management Information System, Human Resource Information System, इन दोनों में difference क्या है? HRIS is a part of MIS. ठीक है. Which of the following departments should develop the policies and guidelines to protect the integrity and security of HRIS? Answer is Human Resource Department. Description is given here that you can see. HRIS, Human Resource Information System, assist in matching job description with the individual's qualification. Answer is true. Next question is ओके जी, HRIS इज़ द पार्ट ऑफ MIS. येस ट्रू. ये ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया है कि ये पार्ट है इसका. Mission is known as the matching of internal organizational strengths and weaknesses with external opportunities and threats to maintain competitive advantage over competitors. Answer is false. भाई ये statement true नहीं है. The strategic human resource planning is developed at corporate level. Answer is true. Next question is okay जी. Sales department should develop the policies and guidelines to protect the integrity and security of HRES. False. भाई sales department क्यों करेगा, उसका तो काम sales से है. Job analysis is a process of gathering information about the job. Job के बारे में information gather करना. और next question है which of the following term is not associated with job analysis, task, duty और position आता है. जो part नहीं है वो है competitors. ये तो बाद की बात है कि अच्छा काम करो. A document containing the minimum acceptable qualifications that a person should possess in order to perform a particular job is called job specification. जो हमें दिखाई जाती है ऐड वगैरह में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सजेस्ट अबाउट द रेलिवेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. आंसर इज जॉब इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस एक्सेप्ट. नॉलेज भी आता है, स्किल्स एबिलिटीज आते हैं, वर्किंग कंडीशंस नहीं आती. नेक्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस. आंसर इज ट्रू. हाँ जी भाई, जॉब एनालिसिस के बाद ये चीज़ें आती हैं. जॉब एनलार्जमेंट इज़ कंडक्टेड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब. फॉल्स. एनलार्जमेंट तो ना हुई ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ वर्क विच इज़ अ लॉजिकल एंड नेसेसरी स्टेप इन परफॉर्मिंग अ जॉब ड्यूटीज कॉल्ड अ टास्क. आंसर इज ट्रू. टास्क की डेफिनेशन आ गई. Next question is the one or more tasks that constitute a significant activity performed in a job is known as responsibility. Answer is false. Next question is the job duties and responsibilities statement is the most important section of job description. Answer is true. Next question is a job analysis method which requires job incumbents to record their daily activities is known as diary method. ठीक है, इसे डायरी मेथड भी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, जॉब डेटा. आंसर इज केस स्टडी. बाकी सुपरवाइज़र, जॉब एनालिस्ट और कंसल्टेंट ये सारा मेथड हैं, जो नहीं है वो केस स्टडी है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द जनरल नेचर ऑफ द जॉब एंड इंक्लूड्स ओनली इट्स मेजर फंक्शंस और एक्टिविटीज़. आंसर इज जॉब समरी. Next question is all of the following are the drawbacks of job analysis except do not support the legality of the of employment practices. ठीक है. Next question is all of the following are quantitative job analysis techniques except सारी quantitative हैं.
जो नहीं है वो है बेनिफिट पैकेज डिस्क्रिप्शन, ये टेक्निक नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द रिलेटिव वैल्यू और कंट्रीब्यूशन और डिफरेंट जॉब्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज जॉब स्पेसिफिकेशन, आंसर इज फॉल्स। भाई ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। Next question is job analysis method which requires job incumbents to record their daily activities is known as diary method, answer is true। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था, उसमें जस्ट डायरी मेथड को सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक विच प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट द जॉब होल्डर डज, आंसर इज ट्रू। जॉब एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स, भाई बंदे के बारे में करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपार्टमेंट ऑफ लेबर प्रोसीजर इज़ अ क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक विच इज़ मोर एप्लीकेबल टू लोअर लेवल ब्लू कलर जॉब्स, आंसर इज़ फॉल्स। सो वी हैव completed our today's quiz of lecture number 13, 14 and 15 most important questions for your exam। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे रिसेंट क्विजेज़ भी अच्छे हो जाते हैं और आपके जो पेपर हैं उसमें अगर आप ये पूरी सीरीज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, क्विजेज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इतने सारी कलेक्शन आप लोगों के पास क्विजेज़ की हो जाती है, इससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।